So today we are going to discuss the suitability we had already discussed of indirect oral investigation. Once again, I am repeating it. Indirect oral investigation method, beta, it is suitable where the field of inquiry is large. So when we require, say CBSE wants the information from whole of the students of 10th class standard of whole of the country of जितने भी CBSE affiliated schools हैं उसमें 10th के जो students हैं, ठीक है, उनसे हमें information लेनी है. In that case wide coverage is there, ठीक है. So in that case we can make use of indirect oral investigation. The CBSE may contact school principals to get information about the students, right? Secondly, when it is not possible to have direct contact with the concerned respondent, ये मेथड वहां पर सूटेबल है जहां पर इन्वेस्टिगेटर का इंफॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. सो थर्डली, समटाइम्स रिस्पोंडेंट्स, it is possible to contact informant, but the informant may hesitate to provide information, he may be reluctant to provide information. So in that case again you should approach third party and make use of indirect oral investigation, right? Sometimes investigation is so complex that you need to take the help of experts to get information. So that third party would be the expert in this case, and you can obtain information, right? Now, coming to merits and demerits of this method of data collection. First merit is wide coverage. Suitability में हमने already discuss कर लिया है. Large, right? So whenever the field of inquiry is large, we can make use of this technique of data collection. Secondly, this is less expensive. I have already written the merits points here. Less expensive because we are obtaining information about a whole lot of informants from one person. So the person is supposed to say possess information about hundreds of people. So we get information about hundreds of people just from one witness. So obviously it is less expensive. Then thirdly, it is free from bias. Bias of investigator. ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का बायस एंटर नहीं कर सकता. जब इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेता है इन्वेस्टिगेटर, उस टाइम पर उसका बायस एंटर कर सकता है, लेकिन इस टाइम पे वो विटनेस से thousands of people, hundreds of people के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है. So there is a less chance that the bias of the investigator would enter, right? Then another merit is बेटे expert opinion. Suitability में भी हमने डिस्कस किया कि इस मेथड में we can seek the opinion of expert person. For example, एक हमें हॉस्पिटल में let's say 200 लोग कोविड पेशेंट हैं, तो we want to know about their condition. आपका एक प्रोजेक्ट है, आपको अपने प्रोजेक्ट में, आप बायो के स्टूडेंट है, आपको कोविड के बारे में, कोविड पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोविड पेशेंट, ठीक है. मोर ओवर इफ यू कॉन्टैक्ट डॉक्टर, एक तो ये पॉइंट आ गया कि आप कोविड पेशेंट से डायरेक्टली मिल ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको भी इन्फेक्शन हो सकती है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम देम. तो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है? डॉक्टर है या कोई और मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, अटेंडेंट्स हैं, ठीक है. तो आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. इससे क्या हुआ, एक तो आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ गया और मोर ओवर आपको इन्फेक्शन भी नहीं हो गई, यानी आपके लिए पॉसिबल नहीं था इनके साथ डायरेक्ट इंफॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, और मोर ओवर डॉक्टर से बात करके आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ गया, ठीक है. सो मोर ओवर बेटा इट इज क्वाइट अ सिंपल मेथड of collecting primary data, but
नो लेस आर द डीमेरिट्स, हर बेटे मेथड के मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, so we have to keep in mind the limitations as well. First demerit is it is less accurate, obviously, because we are not getting information, directly from the source of origin, so third party may not be uh, very much honest about the information, or third party might not be much aware, he can just have guesses and all, ठीक है, तो उस केस में वो इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती. सेकेंडली बेटे बायस्ड. नाउ यू विल से कि यहाँ पे आपने कहा कि इट इज फ्री फ्रॉम बायस, सो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेटर का बायस नहीं आ सकता, लेकिन इस मेथड में बेटे विटनेस का बायस एंटर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट से या एक गेट कीपर से इतने बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है, ये स्टूडेंट जो है ये गेट कीपर को थोड़े दिनों बाद 500 रुपए का नोट पकड़ा देता है, या ये एक स्टूडेंट है, ये इसका फ्रेंड है, तो इसके बारे में झूठ बोल सकता है, ठीक है, तो विटनेस का बायस एंटर कर सकता है. क्लियर बेटे? Now, sometimes the witness may be careless or they may not be aware of the information. So, this may lead to doubtful conclusion. बेटे हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि डेटा के बेसिस पर हमें कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, तो उस केस में अगर विटनेस की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो फिर उससे हम डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. Now, let us move ahead with the third method of collecting primary data, and that is information from local sources or correspondence. So before explaining its meaning, bete, let me ask you one question. Do you people read newspaper or you people watch news channels? All of those who do so, please raise your hands. Any one of you who reads newspaper? Okay. So, bete, whenever you read newspaper or watch news channel, so आपको जो भी एक न्यूज आती है, लेट अस से ये पंजाब केसरी है, ठीक है, अब इसका जो ओनर है मिस्टर ए, अब इसकी न्यूज़पेपर में कितनी सारी न्यूज छपती है एक दिन में, ये क्या ए पर्सन खुद कलेक्ट करता है? Does he collect this information on his own? ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है बेटे एक तरह से ये डेटा या इंफॉर्मेशन, हम यही बात करें कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए है. आज की इंफॉर्मेशन आई है कि कोविड पंजाब में अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, इतने लोग आज ट्रीट हुए हैं, इतने लोग अभी भी रिस्क में हैं, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? कैन एनीवन टेल मी? हम जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, न्यूज आर्टिकल या न्यूज पढ़ते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उस पर्सन को जो ये न्यूज लिखता है. एक तो होता है ना एडिटर जो कंपाइल करता है, ठीक है, ओके, रिपोर्टर, एंड व्हाट एल्स, एनी अदर नेम? रिपोर्टर कह लो या कॉरेस्पॉन्डेंट कह लो, ठीक है, आप अभी अपनी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कोई भी न्यूज पीस होगा उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम लिखा होगा. सो बेटे इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस वही मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर ए पर्सन इन्वेस्टिगेटर है आपका, सो ही अपॉइंट्स लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कह देते हैं, at different places. Now these correspondents, they collect the data, they collect the information in their own way, and they furnish this information to the investigator, right? So this method of collecting data is known as information through local sources. Quite simple. Investigator appoints local sources, right, at different places. These local sources collect information in their own way and they furnish the information to the investigator.
In this way data is collected. ठीक है, जनरली बेटे न्यूज़पेपर्स या न्यूज चैनल्स इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ये मेथड वहां पर यूज होता है वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट लार्ज. Just like a newspaper, we need information about whole of the world, right from say the place we are sitting, that is Jalandhar, to whole of the world. We need information about all of the world, right? So for that, to collect information about whole of the world, US में elections हो रहे हैं, वो भी हमने अपने रीडर्स को बताने हैं. बंगाल में राइट्स हो रहे हैं या इलेक्शंस होके हटे हैं, उसका रिजल्ट भी हमने अपने व्यूअर्स को, रीडर्स को बताना है. जलंधर में क्या चल रहा है वो भी हमने अपने व्यूअर्स को बताना है. स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, दैट आल्सो वी हैव टू टेल, which means the area of investigation is quite large. And secondly, we have to provide this information daily, right? Daily हम newspaper पढ़ते हैं, so we require regular and continuous information. डेली आप फ्रेश न्यूज ही पढ़ोगे ना, पुरानी न्यूज तो नहीं पढ़ोगे. तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर को डेली आपको न्यूज देनी है. इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर को डेली इंफॉर्मेशन चाहिए, रेगुलर चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए. एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी लार्ज है, तो उस केस में ही कैन मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज. आप थोड़ा सोच के देखो, इससे पहले आपने दो मेथड्स किए हैं, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल. क्या डायरेक्ट, क्या ए पर्सन के लिए पॉसिबल है कि हर फील्ड के लोगों से जाके मिले और इंफॉर्मेशन फर्निश करे और अगले दिन अपनी न्यूज में दे दे? नो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, आप न्यूज चैनल भी अगर देखते हैं, आपको न्यूज रीडर है, सुधीर चौधरी है, वो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, अलग अलग स्लॉट है उसके 1 घंटे के प्रोग्राम के, तो उसमें आपको अलग अलग न्यूज देता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की न्यूज देता है. डू यू थिंक ही इज collecting whole of the information on his own? No, he has a team of correspondents. ठीक है, सो सूटेबिलिटी दोबारा से मैंने वैसे कवर कर दिए सारे पॉइंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं. बेटे this method is more suitable when regular and continuous information is required. Secondly, when the area of investigation is large. Thirdly, when the information is to be used by magazines, journals, etc. Then when we do not require a high degree of accuracy, a reasonable degree of accuracy हमें चाहिए, high degree of accuracy नहीं चाहिए. क्योंकि बेटे जब हम local sources अपॉइंट करते हैं, हर पर्सन अपनी तरह से ही उसको इंटरप्रेट करता है. ठीक है, तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डेटा दिया होता है. अगर आज वहां पर एक न्यूज़पेपर में आया कि इतने पेशेंट्स हैं कोविड के जलंधर में, तो दूसरे न्यूज़पेपर में कम या ज्यादा शो हुए होते हैं. ठीक है, सो ये ऐसा इसलिए है बेटे क्योंकि हर कॉरेस्पॉन्डेंट अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. सो 19-21 का फर्क पड़ ही जाता है. सो अगर हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, then we can make use of this method, right? All right, so this method is quite economical. It does not require much of the time, money, or efforts, right? Obviously we are obtaining information from whole of the world, say, but we have appointed our correspondents, so this becomes economical way of collecting data. So wide coverage बेटे हो जाती है, और कोई भी मेथड सूटेबल नहीं है इतना लार्ज एरिया कवर करने के लिए. Only information from local sources, right? Then we get continuity, that is continuous information हमें मिलती रहती है by making use of this method. Then let's discuss its demerits as well. बेटे लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी जो है वो सेक्रीफाइस हो जाती है. लाइक आई टोल्ड यू, here we are not obtaining
we might not be obtaining जो correspondent है वो information कहाँ से ले रहा है, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से ले रहा है या वो थर्ड पार्टी से ले रहा है, उसका अपना एक वे है डेटा को कलेक्ट करने का. सो द डेटा मे नॉट बी ओरिजिनल. कई बार तो वो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन को कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन समटाइम्स ही मेक्स यूज ऑफ secondary data, or his way of collecting the data may not be so accurate, so there is loss of originality here. ठीक है. Then lack of uniformity is also there. यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अब अलग अलग लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, हर एक का वे अलग अलग है. ठीक है. सो हर एक का वे अलग अलग है, हम हर एक को एक तरह से ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कोई अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है. सो द डेटा विच इज obtained may not be uniform. Why it may not be uniform? Because it is collected by different correspondents whose way of working might be different from each other. Then personal bias enter कर सकता है यहाँ पे बेटे. यहाँ पर भी किसका बायस एंटर करेगा, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट का बायस एंटर करेगा. ठीक है. आपने कभी अपने पेरेंट्स को शायद कहते सुना होगा कि इस न्यूज़पेपर में तो हमेशा बीजेपी की जय जयकार होती है, या इस न्यूज़पेपर में हमेशा कांग्रेस की जय जयकार होती है. सो वो पर्सनल बायस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का उसमें एंटर कर सकता है. ठीक है. न्यूज चैनल्स में भी ऐसा होता है. सो समटाइम्स देयर मे बी डिले इन कलेक्शन because investigator is relying on correspondence, and correspondents are spread all across the world. Sometimes we require the information on urgent basis, but because we are relying on the correspondent, we may not get the information on time, so there may be delay in collection.